स्वरदा प्रतिष्ठान के तरफ से यह हमारा तीसरा प्रोग्राम है। उसके पहले हमने 2 प्रोग्राम किए थे, एक लता दीदी पे किया था प्रोग्राम, और उसके पहले मराठी संगीतकार और देयर कंट्रीब्यूशन इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ऐसा एक प्रोग्राम। दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम। सेकंड वन वाज ऑफ कोर्स लता मंगेशकर एंड थर्ड नाउ शंकर जयकिशन। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम अगले साल और उसके आगे होते रहेंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट इस तरह मिला जो आज मिल रहा है। धन्यवाद। It's a great support, and I must say that with the advent of Shammi Kapoor style, Shankar Jaikishan's music changed a bit, I would say. ज़्यादा रिदमिक हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा लाउड हो गया, but of course Shammi Kapoor had a different dancing style. So just to match that vigorous style of Shammi Kapoor, he had to bring in vigorous music. So the orchestra was huge and the rhythm side was very prominent at that time. And along with dholak, tabla and harmonium, they used western instruments also. And what a team they had, you know. They had David for mandolin and his disciple Kishore Desai ji, जो हमारे सामने आज बैठे हैं, यहाँ चीफ गेस्ट हैं. Lucilia on piano, Manohar Singh, of course you all know, saxophone, John Pereira trumpet, Gudino drums, Trevor bass, John Pereira trumpet, मैंने कहा, Dilip Desai and Daniel Castro electric guitar, and Ramakant Mapsekar is also here on tabla. And above all, of course, Dattaram and Sebastian. It was like a World Cup winning team, I'll tell you. Shankar, though Punjabi, had spent his childhood in Hyderabad, so he used certain Hyderabadi or Telugu words to enhance Shammi Kapoor's style. That is why he used, words like Ayaya Suku Suku or Yahoo. This was all brainchild of course, Shankar. लेकिन इस वक्त हमने जो गाना लिया है वो सॉफ्ट शम्मी कपूर गाना लिया है, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली का गाना. Ajit Maurya, a new singer, he's going to render this song. And when he was in job, he helped us in getting sponsors also. That is also very important, as you know. To have a program, to run a program, to arrange a program, we need sponsors. Mukesh was always voice of Raj Kapoor till Mukesh died. लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट देखो अंदाज में, जिस सिनेमा में दिलीप कुमार राज कपूर दोनों काम कर रहे थे, वहां दिलीप कुमार को प्लेबैक दिया गया था मुकेश का और राज कपूर को दिया गया था मोहम्मद रफी का. दिलीप कुमार नेवर वांटेड मुकेश as a playback singer for him. He opted for Talat in those days and later on of course मोहम्मद रफी. लेकिन नौशाद जी ने उन्हें समझाया कि आप गाना तो सुनो, गाने बहुत अच्छे, and you will accept what I have done. And when Dilip Kumar heard those songs, he said, yes, I accept your view. और मुकेश ने बहुत अच्छे गाने गाए. But at that time, Raj Kapoor had thought of making Mukesh his playback singer or his voice. जब मुकेश को किसी ने जाके बताया कि राज कपूर कहते हैं कि आइंदा मुकेश का आवाज वो एज अ प्लेबैक लेंगे, तो मुकेश स्माइल्ड एंड सेड कि राज कपूर जी की खुद की आवाज इतनी मीठी है कि उनको प्लेबैक की जरूरत ही क्या है. और एंड ही सेड दिस व्हाई, बिकॉज एट दैट टाइम एस.डी. बर्मन ने राज कपूर से दिल की रानी सिनेमा में गाना गवा के लिया था, एंड दैट सॉन्ग वाज वेरी फेमस. But Raj Kapoor always felt that he is not a playback singer. He was only an actor. Of course, though he had great knowledge of music, he always opted for Mukesh. He only changed Mukesh in Chori Chori, in Sri 420. Why? I'll tell you later on. That was a different story. That was a different anecdote. But till end, Mukesh was his playback. मुकेश का हम गाना ले रहे हैं. शंकर एंड जयकिशन वेर पोल्स अपार्ट सो फार एज देयर नेचर वाज कंसर्न. शंकर जी थोड़े सीरियस किस्म के इंसान थे, जयकिशन जी ज्यादा रोमांटिक थे और हैंडसम थे. जब पहली बार वो लता जी से मिले, राज कपूर हैड सेंट हिम फॉर सम मैसेज, तो लता जी को भी लगा कि अरे ये तो राज कपूर के भाई हो सकते हैं. ही वाज सो हैंडसम. शी रियलाइज्ड जब दूसरे दिन उन्हें रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मिले, तब उन्हें समझा कि अरे ये तो म्यूजिक डायरेक्टर है, राज कपूर के भाई नहीं. बट ही वाज सो हैंडसम एट दैट टाइम. एंड उन खुश मिजाज जिसे कहते हैं, उस खुश मिजाज के आदमी थे वो. दोपहर को 3 बजे स्टूडियो छोड़ते थे, लेकिन सुबह 9 बजे आते थे स्टूडियो में. दोपहर को 3 बजे छोड़ते थे,
फिर कोई गर्लफ्रेंड उनके साथ होती थी, फिर एरोस को जाके या और दूसरे थिएटर में जाके पिक्चर देखते थे, रात को जाके गैलॉर्ड रेस्टोरेंट में बैठते थे और उनका दिन भर का जो प्रोग्राम होता था यूँ होता था. But Shankar's strong point was of course serious tunes and classical tunes. Jai Kishan opted always for romantic songs, but his biggest asset was background music. उस जमाने में नौशाद and वसंत देसाई, they were known for background music, followed by of course Salil Chowdhury. But everybody says that Jai Kishan was a master and he was faster than all three together. He was also fast in romance like Shammi Kapoor in Professor. प्रोफेसर का एक गाना हम आपके सामने पेश कर रहे हैं. राज कपूर्स लैंडमार्क फिल्म एंड ऑल्सो लैंडमार्क फिल्म फ्रॉम फॉर शंकर जय किशन आई वुड से. एंड द ड्रीम सॉन्ग ऑफ आवारा वाज अ हाईलाइट. कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि आन के सेट से ये जो सेट था वो ड्रीम सॉन्ग का वो राज कपूर ने चुराया. बट आई डोंट बिलीव इन दैट सिंपली बिकॉज राज कपूर एंड M.R. आचरेकर वाज एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन. ये दोनों इतने बड़े थे, उनकी कल्पना शक्ति इतनी बड़ी थी कि दूसरों की कुछ चीज़ें चुराने की उनको ज़रूरत ही नहीं थी. आजकल जो ड्रीम सॉन्ग्स होते हैं वो आइदर स्विट्जरलैंड में होते, यूरोप में होते या अमेरिका में होते. बट राज कपूर बिल्ड दैट सेट एंड इट वाज यूनिक एट दैट टाइम. और उस ड्रीम सॉन्ग के लिए जो ट्यून शंकर जयकिशन ने बनाई थी, दैट ट्यून वाज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग. राज कपूर को एक अच्छा ढोलकी बजाने वाला चाहिए था, तो उन्होंने दत्ताराम से कहा कि कहाँ से भी जा लेकिन अच्छा ढोलकी बजाने वाला एक लेके आ. दत्ताराम टोल्ड राज कपूर कि फोरास रोड पे एक तवायफ का कोठी है या कोटा है, जिसे आप कुछ भी कहिए, वहाँ एक ढोलकी बजाने वाला है, मैंने उसे सुना है एंड ही इज़ एब्सोल्युटली एक्सलेंट. तो राज कपूर ने कहा अभी का अभी निकलने का, पिला हाउस जाने का, तवायफ के कोठी पे जाने का और उसको उठा के लेके आने का. बेसिकली क्या, तवायफ के कोठे पे जाना बुरा चीज़ नहीं है. दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से. अगर आप अच्छे लोगों को वहाँ मिल सकते तो व्हाट इज़ बैड इन दैट. यूँ हुआ कि दत्ताराम वहाँ चले गए. उन्होंने उसे पूछा कि राज कपूर साहब ने आपको बुलाया, आप चलते हैं क्या. वो निकला, राज कपूर साहब के सामने उन्होंने उन्हें खड़ा किया. ही वॉज शैबिली ड्रेस्ड. उनका जो नेहरू शर्ट था, पैजामा था, वो सब मैला हुआ था. तो राज कपूर ने कहा किसको उठा के लेके आया है. तो फिर दत्ताराम ने कहा उनका ड्रेस मत देखो, सी हिज ढोलकी. और उन्होंने जो ढोलकी बजाई, राज कपूर ऑफ कोर्स ही हैड अ ग्रेट ईयर फॉर म्यूजिक, पागल हो गए. उनका नाम था लाला गंगावणे. और तेरे बिना आज ये चांदनी और घर आया परदेसी, ये गाने में उन्होंने ये जो ढोलकी है वो बजाई है. ये दोनों गाना एक साथ रिकॉर्डिंग हुआ इस गाने का. गाने की रिकॉर्डिंग इट स्टार्टेड एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग and it finished at 3 o'clock next day early morning. And Lata was at her fabulous best. मराठीत सांगायचं तर नंतर तिच्या आवाजाने कळस गाठला होता आणि लताचाच तो आवाज होता. तो कळस आम्ही इथे आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तेरे बिना आज ये चांदनी अख्खं गाणं तुमच्या समोर पेश करतो. हां, आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की हे गाणं मी त्या अजयला आत्ता सांगितलं की आपल्याला घ्यायचं आहे, कारण ह्या गाण्याशिवाय शंकर जयकिशनचा कार्यक्रम होऊच शकत नाही. आणि त्यामुळे जसा बाकीचे म्युझिक डायरेक्टर यू कॉम्पोज करतात, तसा अजय आमचा तो पण मोठा कॉम्पोजर आहे, मोठा अरेंजर आहे. त्यांनी सांगितलं काळजी करू नकोस, आपण हे गाणं घ्यायचं आणि इथे वाजवायचं. त्याच्या कॉन्फिडन्सवर मी तयार झालो आणि तुम्ही त्याच्या कॉन्फिडन्सवर तयार, आणि माझी खात्री आहे की तो नक्की चांगलं वाजवेल.